This conference will now be recorded. So, students, in the previous session, we have discussed that what are the limitations associated with the Salesforce, specifically regarding DML statement, right? We cannot have more than 150 DML statement of the execution within a single transaction, right? हमने कल एक प्रोग्राम भी करके देखा, rather two program करके देखे थे. In one program, when we were try to insert records less than 150, we were taken the example of 140 records. Then the system was accepting those record and system was inserting the record into the object, that is Salesforce object, right? But whenever we are dealing with whenever we are dealing with record more than 150, right, till 150 it will accept. But if the number of record exceeded than 150, then the system will not accept those record and it will throw an exception that governor limit exceeded 150, governor limit exceeded number of DML statement 151, राइट. ये एरर आएगा आपको. उसका मतलब है दैट आपने जो डीएमएल स्टेटमेंट यूज किया है वो 150 से ज्यादा आपके एक ट्रांजैक्शन में है. सो सिस्टम विल नॉट अलाउ. एंड आई गिव यू अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल ऑफ योर सुपरमार्केट, राइट. नाउ टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम. वो जो प्रॉब्लम है वो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट. उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले, जैसे सुपरमार्केट का एग्जांपल लिया हमने, that what we need to have some basket or some trolley, and then we will put all the items into that basket or a trolley, and then finally we will reaching to the billing counter and we will making the bill, or we will do making the bill payment and all the procedure, right. So that is the thing is there. So similarly also, we will not iterate this operation one by one. Rather, we will have those records, put it into one basket. जितने भी records को हमें हमें process करना है उन सबको हम एक basket में डाल देंगे और फिर वो basket को लेके जाके billing counter पे या फिर Salesforce object में insert करेंगे. So जैसे आप बिलिंग काउंटर पे बिल कितने बार करते हो? एक बार. भले आप चीजें एक चीज लो या हजार चीज लो, राइट, राइट. तो एक ही बार बिल करेंगे. इसमें भी भले आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट करो या हजार रिकॉर्ड इंसर्ट करो, राइट. इसमें कितना आपका डीएमएल स्टेटमेंट खर्च होगा? सिर्फ एक, राइट. सो that is what the thing is there. So I will let you know then how to do it. Okay, so first of all, go to your developer console, okay, simply, and then try to create one apex class. Okay, so you all are well aware of how to create the apex class. Go to file, new apex class, and then here you can give the name to the apex class. Let me give the name of, let's say, multiple records insertion. You can give any name, right, and just hit on enter button. This will create the apex class, blank apex class. Okay, so once it is created, then very first thing that you need to do, you need to create some method, right. सबसे पहले कोई भी लॉजिक लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? मेथड, राइट. सो मेथड व्हाट इज इट? Public static void, and then give the name to the method. Let me give as method 1. You can give any name, round brackets open and close, and then curly brackets, again open and close. Once you did it, now yesterday what we did, हमने कल क्या किया था पहले उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं. yesterday we have wrote the program inside the for loop, और वो for loop क्या करती है? इटरेट करती है जितना भी आपने काउंटर का वैल्यू दिया था, राइट. Yesterday we were given the value 140, so that for loop was iterating for 140 times, right. So वो आपका वो for loop के अंदर ही आपका insert statement था, right. So वो insert statement 140 बार execute हो रहा था. मतलब हर लूप के अंदर आपका जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो रिकॉर्ड आपका लोकल सिस्टम सर्वर में जाके डाल के आएगा. फिर सेकंड लूप जब सेकंड टाइम इटरेट होगी, देन सेकंड टाइम भी वो सर्वर के पास जाके वो रिकॉर्ड इंसर्ट करके आएगा, राइट.
So rather than that, what we will do, we will have some basket, right? And हमारे यहाँ मतलब in case of Salesforce, we can have 4 types of baskets, राइट? तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट यू वेल अवेयर ऑफ वन बास्केट, यू माइट हैव हर्ट इट, दैट इज कॉल्ड एज अरेज। उसको क्या बोलते हैं? अरे। बट अरे एंड इन केस ऑफ सेल्सफोर्स हैज प्रोवाइडेड 4 टाइप्स ऑफ बास्केट। एक तो है आपका अरे, और दूसरे होते हैं कलेक्शंस। अरे मीन्स आपके नॉर्मल एरेज जो आप पढ़े होंगे, एंड इनसाइड ऑफ दिस कलेक्शन देर आर अगेन 3 कैटेगरीज आर देयर। लाइक अरे का खुद का एक टाइप और कलेक्शन के 3 टाइप, राइट? अरे का एक टाइप एंड कलेक्शन के 3 टाइप। कलेक्शन में आता है लिस्ट, सेट एंड मैप। We will not go into that much of detail because that will be purely very deep dive into the programmatical concepts, right? And we will discuss only one type of collection, that is list collection, right? So there is one collection is there, array is there. So what is the difference between collection and array? देखो, the arrays are nothing but array, जब भी मुझे array यूज करना है, राइट? array is nothing but सम मेमोरी मुझे अलॉट करनी है। अगर मुझे कोई मेमोरी अलॉट करनी है तो मैं क्या करूंगा? एरेज यूज करूंगा, राइट? बट अरे का साइज मुझे पहले से डिफाइन करके रखना पड़ेगा, राइट? अरे का साइज में अगर डिफाइन करता हूं दैट 25, कितना डिफाइन करता हूं? 25। दैट मीन्स अरे में मैं सिर्फ 25 या फिर 25 रिकॉर्ड्स ही इंसर्ट कर मतलब डाल सकता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट बास्केट्स, राइट? So in case of your basket, we are having 2 types of basket, that is arrays and collection. अभी मैं arrays और collection का difference बता रहा हूँ, right? arrays में क्या होता है? array का size मुझे पहले से बताना पड़ेगा प्रोग्राम में कि array का size 25 है या 25 है। What does it means? मैं array में सिर्फ क्या डाल सकता हूँ? 25 रिकॉर्ड्स ही डाल सकता हूँ। या फिर मैं सुपरमार्केट में जाता हूँ, एक एरे नाम का बास्केट है, वो एरे नाम का बास्केट लेता हूँ, मुझे वो सिक्योरिटी कैबिन पे ही बताना पड़ेगा कि मुझे कितने आइटम्स इसमें डालना है, राइट? मैंने बोला मुझे इसमें 25 आइटम डालना है, वही एरे देना, राइट? तो वो एरे मुझे निकाल के देगा या फिर वो आइटम ने मुझे निकाल के देगा। तो मैं आगे जाऊंगा, खरीदते जाऊंगा, बट मुझे बाद में लगा यार मुझे 25 नहीं, मुझे और आइटम्स खरीदना है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल विथ एरेज। या फिर मैं दूसरा उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? पहला पहला मैंने आपको बताया एरेज। मैं सिक्योरिटी काउंटर पे जाता हूँ, उसको बोलता हूँ मुझे 25 शेल्स वाला एरे देना या 25 शेल्स वाला बास्केट देना। तो मैं 25 उसमें 25 आइटम्स ही बैठ सकते हैं। तो मैं लेके गया, 25 आइटम खरीदा, मुझे लगा 25 नहीं, मुझे और 5-6 आइटम खरीदना है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल विथ योर एरे बास्केट। देन व्हाट इज सेकंड अल्टरनेटिव? फिर मुझे अगर मैं क्या करूंगा कि मुझे 25 आइटम लेने हैं, तो मैं 100 आइटम का एरे ले लूं, राइट? मतलब बहुत सारा बफर लेके चलो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? तो मैं जाता हूँ, ओके, एरेज लेके जाता हूँ 100 आइटम का, उसमें मुझे 25 की जगह पे मैं 30 आइटम डालता हूँ, बट स्टिल 70 शेल्स मेरे एम्प्टी रहेंगे, राइट? नाउ टेल मी, ये इसमें भी है, सेम कॉन्सेप्ट है। आपके सेल्सफोर्स एपेक्स क्लासेस में भी एरेज क्या होता है? फिक्स्ड मेमोरी साइज है, राइट? तो एक बार आपने उसका साइज डिक्लेयर कर दिया, तो आप उसको आगे जाके चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? तो आप अगर 100 साइज का एरे वो सुपरमार्केट में लेके चलोगे, तो एक तो पहले से ही वहां पे बहुत भीड़ होता है, राइट? तो आप चलोगे, दूसरे भी लोग रहेंगे, उनका भी खुद का एरे रहेगा या खुद का बास्केट रहेगा, तो बहुत भीड़ हो जाएगा, बहुत ट्रैफिक बढ़ेगा बिलिंग काउंटर तक पहुंचते पहुंचते। सो इन केस ऑफ आवर बिलिंग काउंटर क्या है? सर्वर है। सो हमारे यहाँ से लेके सर्वर तक, मतलब लोकल सिस्टम से लेके सर्वर तक बहुत ट्रैफिक बढ़ जाएगा इंटरनेट पे, योर सर्वर में क्रैश और एनीथिंग में हैपन। एक तो पहला प्रॉब्लम है एरे आस्ट फिक्स साइज मेमोरी एरे में। दूसरा मैंने एग्जांपल क्या बताया कि मुझे अगर एरे का साइज सफिशिएंट नहीं हुआ, तो मुझे कुछ रिकॉर्ड्स को छोड़ देने पड़ेंगे या कुछ आइटम को छोड़ देना पड़ेगा,
तीसरा मैंने सॉल्यूशन बताया, ठीक है, आपको नहीं छोड़ना है तो आप बड़े साइज का एरे लेके चलो, बड़े साइज का बास्केट लेके चलो, राइट। बट उस केस में क्या होगा, मेमोरी वेस्टेज होगा, राइट, क्योंकि आपने 100 शेल का एरे लिया है जिसमें 100 रिकॉर्ड डाल सकते हो, बट आप उसमें डाल रहे हो 25 या 30 ओनली। सो बाकी के 70 शेल्स तो वेस्टेज ही है, राइट। तो वो मेमोरी, क्योंकि ये मेमोरी है, वैसे जैसे बास्केट का साइज बड़ा लिया आपने, राइट, वो एक स्टोरेज स्पेस है, तो स्टोरेज स्पेस वेस्टेज जा रहा है वहां पे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, Salesforce has given one additional category of storage, उसको हम बोलते हैं collections, right? And what is the basic difference then between arrays and collection? Collections are like a balloon, गुब्बारा, राइट। उसमें आप जितना एयर उसमें फिल करोगे उतना वो गुब्बारा बढ़ता 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 जाता है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिक्योरिटी काउंटर पे बोलूँ कि मुझे 10 साइज का कलेक्शन दो, नो। कलेक्शन में आप जितने आइटम्स डालते जाओगे, मैंने पहले 1 आइटम डाला तो उसका स्टोरेज स्पेस 1 ही रहेगा, उसमें 10 आइटम डाला तो उसमें स्टोरेज स्पेस कितने रहेंगे, 10 ही स्टोरेज स्पेस रहेंगे, right? So that is the basic difference between arrays and collection, right? So there are three types of collection, that is list, set and map, but we will discuss only one category, that is list collection, right? So now इसका नाम क्या है, लिस्ट, राइट। अभी ये लिस्ट में, राइट, अभी ये मुझे क्या करना है, what I need to have, I need to insert more than 150 record into the Salesforce object। कल हमने देखा 150 तक, दैट इज फाइन, बट 150 के आगे प्रॉब्लम है। नाउ आई वांटेड टू हैव 150 रिकॉर्ड इनटू विच ऑब्जेक्ट, हॉस्पिटल ब्रांच। कौन से ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करना है, हॉस्पिटल ब्रांच। सो मुझे एक ऐसा कलेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट, जिसमें मैं क्या डाल सकूं, हॉस्पिटल ब्रांचेस के रिकॉर्ड डाल सकूं। कितने, दैट इज नॉट एन इश्यू एट ऑल, राइट। तो मुझे एक कलेक्शन बनाना है, राइट। कलेक्शन के तीन कैटेगरी मैंने आपको बताए थे, लिस्ट, सेट एंड मैप। सो वी विल डिस्कस अबाउट लिस्ट कलेक्शन ओनली। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड है लिस्ट टाइप करना है, राइट। तो सिस्टम को समझ में आएगा कि भाई ये कलेक्शन है, इसमें इसमें कुछ डेटा आने वाला है, राइट। बस, बट कौन सा डेटा, हमारे यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स है, राइट। डेटा टाइप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, string, integer, boolean, है ना, then date, date time, then double, decimal, long, right? These are certain data types that we have discussed. They are the primitive data type, right? I have taken a one specific session on the data types only, right? apart from that Salesforce के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका भी एक डेटा टाइप होता है, राइट। जैसे पेशेंट, डॉक्टर, वो भी एक डेटा टाइप है, राइट। वी हैव टेकन वेरी स्पेसिफिक सेशन, आई थिंक 15th और 16th सेशन इट वाज देयर। सो इफ यू आर हैविंग एनी थिंग, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, राइट। सो हमें कलेक्शन बनाना है, मैंने सिस्टम को बोल दिया कि भाई मुझे लिस्ट कलेक्शन बनाना है, बट किसका, स्ट्रिंग का है, बुलियन का है, राइट, किसका, या फिर इंटीजर का है, किसका कलेक्शन, राइट। तो हमें एक कलेक्शन बनाना है हॉस्पिटल ब्रांच का, राइट। हॉस्पिटल, अगर स्ट्रिंग का होता तो मैं लिखता यहाँ पे स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग का होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग बताया, मतलब ये कौन सा कलेक्शन होगा, इसमें मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। इसको मैं निकाल के ये कलेक्शन अगर देता, यहाँ पे मैं इंटीजर लिखता, राइट। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे मैं कौन सा, इस कलेक्शन में कौन सा डेटा स्टोर कर सकता हूँ, इंटीजर डेटा। बट मुझे कौन सा डेटा स्टोर करना है, तो मुझे हॉस्पिटल ब्रांच का डेटा स्टोर करना है। सो हॉस्पिटल ब्रांच का डेटा स्टोर करना है तो वो एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप लेना पड़ेगा, राइट। एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप लेने के लिए क्या करते हैं हम हर बार, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू योर ऑब्जेक्ट मैनेजर, सर्च फॉर हॉस्पिटल ब्रांच, और उसका जो एपीआई नेम है, राइट, दिस इज योर एपीआई नेम, जस्ट कॉपी इट एंड देन पेस्ट इट ओवर हियर, राइट। सो ये कलेक्शन अभी क्या स्टोर करेगा, व्हाट दिस कलेक्शन विल स्टोर, दिस विल स्टोर हॉस्पिटल ब्रांच रिकॉर्ड्स, राइट। सो इस कलेक्शन को कुछ नाम दे दो, राइट। आई विल कॉल इट एज एस एल एस टी
एच बी, मतलब क्या है, ये लिस्ट है हॉस्पिटल ब्रांच का। फिर उसको न्यू बोलना है, ये सिंटैक्स है, न्यू इज द कीवर्ड, राइट, न्यू इज द कीवर्ड। अगेन सेम, लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ किसका लिस्ट बनाना है मुझे, हॉस्पिटल ब्रांच का। अगेन ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन एंड देन सेमीकोलन, राइट। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर प्रिपेयरिंग द कलेक्शन। ये किसका कलेक्शन हो गया, हॉस्पिटल ब्रांच का। उसका नाम क्या है उस कलेक्शन का, उस कलेक्शन का नाम है मेरा LSTHB, राइट। इफ आई वांटेड टू प्रिपेयर, if I wanted to prepare record list collection to store patient record, then what could be the syntax, patient underscore underscore c, right, lstpat, you can give any name over here, is equal to new. Just for your understanding, I'm writing this, for patient. Okay, so this is how you can prepare the collection for patient or for any object, right? Then if I wanted to prepare the collection for string, आपको सिर्फ अगर वो collection में string value store करनी है, right? So simply you can, what you can write, list of string lst str, you can give any name over here, lst str or whatever as per your understanding, new, then list of, here string once again, right? इस तरह से आप क्या कर सकते हो, collection you can prepare. Okay, so now this is how the collections are prepared, but we don't need this, we don't need these two collections, right? This is only for your understanding I wrote here. So just I'm just deleting these two lines, right? Now I have prepared the collection, I have prepared the collection. किसका collection prepare किया है मैंने, इसका हॉस्पिटल ब्रांच का, जिसका नाम क्या है, LSTHB। ये मेरा बास्केट हो गया, राइट। LSTHB क्या है, मेरा बास्केट, जिसका साइज डायनामिकली चेंज होने वाला है। जैसे जैसे हम उसमें रिकॉर्ड डालते जाएंगे, बलून गुब्बारे में जैसे आप हवा भरते जाओगे वैसे वैसे फूलता जाता है। अगर पूरी हवा निकाल दो तो वो पूरा सिकुड़ जाएगा, है ना, उसमें कुछ भी डेटा नहीं रहेगा। तो सिमिलरली योर कलेक्शन वर्क्स, राइट। सो नाउ सेम थिंग जो हमने कल पढ़ा था, अभी हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप बनाएंगे, राइट। कितने करते हैं यहाँ पे, इंटीजर, राइट, काउंटर, काउंटर स्टार्ट करता हूं मैं 1 से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, देन आफ्टर दैट यहाँ पे सेमीकोलन, काउंटर, कब तक चलाएंगे उसको, काउंटर को, जब तक वो 200 से कम है या 200 से इक्वल है, राइट। और उसको हर बार क्या करो, काउंटर का वैल्यू बढ़ाते जाओ, एक से बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, काउंटर प्लस प्लस, राइट। वंस यू रीच ओवर हियर, once you reach over here, then you need to give some bracket, जो फॉर लूप शुरू हो रहा है और बंद हो रहा है ये इंडिकेट करने के लिए, राइट। नाउ there any error till this point, no error, राइट। सो अभी ये फॉर लूप क्या करने वाली है, वो 200 बार रिपीट होने वाली है, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे 200 हॉस्पिटल ब्रांच के रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट के साथ जब भी डील करना होता है, व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर, वी नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। सो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, दैट यू आर वेल अवेयर, कल ही हमने देखा था, मतलब 2-3 दिन 4-5 सेशन से वही देख रहे हैं, राइट। हॉस्पिटल ब्रांच का इंस्टेंस क्रिएट करो, उसका एपीआई नेम लिखो, राइट, एचबी लिखते इज इक्वल टू न्यू, देन अगेन एपीआई नेम, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, क्लोज, सेमीकोलन, ये उसका इंस्टेंस हो गया, राइट। सो सारे जो हॉस्पिटल ब्रांच के जो फीचर्स थे वो अभी किस में आ गए, ये एचबी में आ गए, राइट। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, वेरी सिंपल, एंड देन यहाँ पे मैं डालता हूँ एचबी डॉट एचबी डॉट नेम, क्या डालते हैं नेम, मल्टीपल, मल्टीपल नाम देता हूँ, मल्टी मतलब बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स वी आर इंसर्टिंग, राइट। एंड देन इसको
हम अपेंड करते हैं काउंटर नंबर के साथ, मतलब वो क्या प्रिंट होगा वहाँ पे, काउंटर वन, सॉरी मल्टीपल वन, मल्टीपल टू, है ना, इस तरह से वो नाम नेम सेव होगा, राइट। सो वी आर अपेंडिंग, अपेंडिंग मीन्स क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस डालना है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था क्या है ये, राइट। सो काउंटर सेमीकोलन, ओके। देन उसके बाद में मैं डालता हूँ एच पी डॉट लेट्स से वेबसाइट, we are putting over here website, right. So website you can have anything over here, right. Let me have www dot gts solution dot in, solution dot in, okay. So in this way you can insert the, or you can give the values to the different fields of that record, right. once it is there, अभी ये मैंने क्या किया है, एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर होगा कैसे, फॉर लूप कैसे चलेगी फिर, फॉर लूप में सबसे पहले काउंटर का वैल्यू क्या है, सबसे स्टार्टिंग करते हैं, ये क्लास है, ये मेथड है, मेथड के बाद में मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक लिस्ट कनेक्शन बना दिया है, राइट। वो तो सिस्टम को समझ गया कि भाई एक कलेक्शन हम आगे यूज करने वाले हैं, राइट। आफ्टर दैट एक फॉर लूप लिया है, जिसमें उसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, काउंटर का वैल्यू वन से, तो सबसे पहले काउंटर का वैल्यू वन है, वन सेट होगा, राइट। फिर ये कंपेयर करेगा कि भाई काउंटर का वैल्यू 200 से कम है या नहीं है, यस इट इज लेस देन 200, ओके, देन इट विल एंटर इनटू योर फॉर लूप, राइट। फिर वो क्या करेगा, हॉस्पिटल ब्रांच का एक इंस्टेंस बनाएगा, राइट, एंड देन इनसाइड दैट इंस्टेंस एच बी डॉट नेम, जो नेम का वैल्यू है, राइट, नेम का फील्ड है, उसमें वो क्या डाल देगा, ये वैल्यू डाल देगा, राइट, मल्टीपल, और उसके साथ अपेंड करेगा काउंटर। सो इन दिस फर्स्ट इटरेशन काउंटर का वैल्यू कितना है, ये वन है, राइट। सो मल्टीपल वन, ये डेटा जाके नेम फील्ड में जाएगा, राइट। फिर एच बी डॉट वेबसाइट, वेबसाइट में ये वैल्यू आ जाएगा, राइट। बट ये कहाँ पे है, ये अभी तक हम सिर्फ उठाया है जो शेल से, मतलब ये हमने डिसाइड किया है कि ये रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना करना है हमें, या फिर ये मैंने सोचा कि मुझे बिस्किट के पैकेट लेने हैं, तो मैं व्हाट आई विल डू, आई विल पिक द दोज बिस्किट पैकेट एंड पुट इट इनटू व्हाट, मैं किस में डाल दूंगा, वो मेरे बास्केट में डाल दूंगा। बास्केट मीन्स क्या है हमारे केस में, ये वाला, राइट, लिस्ट, ओके। बास्केट मीन्स क्या है हमारा, लिस्ट, उसका नाम क्या दिया है हमने, एल एस टी एच पी। तो किस में ऐड करेंगे हम, ये आइटम किस में ऐड कर देंगे हम, ये बास्केट में। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बास्केट, दिस इज द नेम ऑफ योर बास्केट, राइट, एल एस टी एच पी, राइट। एल एस टी एच पी आपने टाइप कर दिया, उसके बाद में आपने क्या करना है, उसमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, राइट। उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है, तो रिकॉर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे डॉट देना है, राइट। सेकेंड, LSTHB, then what you need to do over here, you just need to give the some dot over here, and after that dot add, then ये जो इंस्टेंस नेम था हमारा, राइट, लोकल सिस्टम में मैंने जो इंस्टेंस बनाया था वो उसमें डाल देना है, राइट, वो उसमें हमने डाल देना है, एंड देन सिंपली सेमीकोलन। Let's see, is there any error? Yes, I think so. What is that error? Line number 11 पे एक error है, missing semicolon at line number 11. Type it here. Yes, here. Okay. So now just press Ctrl S. That error has gone now. Okay. Right. So हमने क्या किया है यहाँ पे हमने वो जो लिस्ट कलेक्शन था, वो जो मेरा बास्केट था जिसका नाम LSTHB था, उसमें मैंने कुछ ऐड किया है, क्या ऐड किया है, तो ये इंस्टेंस ऐड किया है, राइट। वो इंस्टेंस में सारा डेटा है मेरा अभी, राइट। नेम किस में स्टोर किया है मैंने,
ये इंस्टेंस में, वेबसाइट कहाँ पे है, इंस्टेंस में है। तो सारा डेटा कहाँ पे आ गया अभी, ये HB में है, और वो HB को मैंने किस में डाल दिया है, LST HB में, मतलब बास्केट में। ये फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, काउंटर का वैल्यू 2 सेट होगा, फिर ये चेक करेगा कि भाई काउंटर का वैल्यू 2 से ज्यादा है या नहीं, काउंटर का वैल्यू जो 2 है वो 200 से कम है या नहीं है। सो यस, इट इज लेस देन 200, सो इट विल एंटर इनसाइड योर फॉर लूप, इट विल अगेन क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ योर फॉर लूप, राइट, HB नाम से। फिर उसमें ये नेम फील्ड में क्या स्टोर करेगा, मल्टीपल, एंड देन काउंटर का वैल्यू अब सेकेंड टाइम पे 2 हो गया, मल्टीपल 2, ये नेम रिकॉर्ड नेम फील्ड जनरेट होगा। वेबसाइट तो सेम ही रहेगा। फिर जो जो ये इंस्टेंस है सेकेंड इटरेशन में, राइट, वो हम किस में डाल देंगे, LST HB, मतलब हमारे कलेक्शन में। सो कलेक्शन में 2 रिकॉर्ड आ गए, फिर 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स आते जाएंगे कलेक्शन में, वी कैन हैव 200 रिकॉर्ड्स इनसाइड अ कलेक्शन, राइट। सो हमारे कलेक्शन में 200 रिकॉर्ड आ जाएंगे। सो वंस वंस इट इज कंप्लीटेड, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये वैल्यूज 200 होगा, 200 रिकॉर्ड जब इसमें आ जाएगा बास्केट में, सो काउंटर का वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में होगा 201, राइट। फिर ये चेक करेगा कि भाई 201 200 से कम है या नहीं है, सो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा तो लूप से बाहर आके फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और इस टाइम हम इंसर्ट का स्टेटमेंट डाल देंगे। बट इस टाइम हम इंसर्ट क्या करना है हमें, हम बिल किसका करेंगे फाइनली, जब काउंटर पे जाके बिल करते तो बास्केट में जितना भी मटेरियल है सबको ही बिल कर देते, राइट। सो यहाँ पे भी सिमिलरली इंसर्ट बास्केट का जो नाम था हमारा, क्या है बास्केट का नाम हमारा, LSTHB, sorry, LSTHB is our basket name, right, and then semicolon. In this way this whole program is written. Is there any error? Yes, what is that error? No error is there, right. So in this way the whole program is been completed. So what are the steps, first of all prepare the apex class, then prepare some method, inside that method prepare some collection, and then collection में आप क्या करो, for loop लगाओ कल के जैसे ही। और हम इंसर्ट क्या करेंगे, कलेक्शन इंसर्ट करेंगे। कल हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट स्टेटमेंट, इफ यू रिमेंबर कल जिसने भी प्रोग्राम किया होगा, सो हमने इंसर्ट स्टेटमेंट ये फॉर लूप के अंदर ही डाला था, राइट, यही पे फॉर लूप के अंदर ही ये था। इसलिए वो क्या कर रहा था, वन जितना भी आपने इटरेट करेंगे, राइट, काउंटर का वैल्यू हमने मैक्सिमम यहाँ पे कितना सेट किया है, 200, तो हम इंसर्ट स्टेटमेंट फॉर लूप में लगाते तो वो 200 टाइम्स वो इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की कोशिश करता, बट वो सेल्सफोर्स उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता। तो हमने क्या किया, हमने एक बास्केट लिया, उसके अंदर डेटा डाला, राइट, और देन वो बास्केट को इंसर्ट कर देंगे, राइट। दैट इज, दिस प्रोसेस इज नोन एज बल्किफिकेशन प्रोसेस। वी आर इंसर्टिंग बल्क रिकॉर्ड इनटू द सेल्सफोर्स। बट इसका भी फिर लिमिटेशन है, हाँ? By using this process also, we can have only 10,000, we can process only 10,000 records. हम 10,000 से ज़्यादा records process नहीं कर सकते, right? For in order to avoid that, we again have to go for some asynchronous programming. वो next step रहता है program, right? So just try to execute this program. So you all are well aware of how to execute it. Just copy this class name and then control E, inside the control E, then this, what is the method name over here, copy that method name। कभी कभी वो आ जाता है इंटेलिजेंस फीचर से, नहीं आता है तो डरने की बात नहीं है, कॉपी पेस्ट करके भी आप आपका काम चला ही सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपने डालना है मेथड नेम, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, सेमीकोलन, and then press execute button। Oh, still showing some error।
तो वेबसाइट में बोल रहा है just try to just a second. वेबसाइट एक्चुअली मैंडेटरी फील्ड था तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया. नाउ इट इज इंसर्टेड to almost 200 records will be inserted. Just go to your Salesforce org and try to check those records. Multiple 1 2 3 4 नाम से records आपके आगे होंगे. This is now application. Go to the hospital branch. Right. So these are the records that are inserted. You can see this. Right. सो अनदर थिंग इज दैट जब आप पहले देखोगे ना यहाँ पे इसको आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सिर्फ पहले के 50 रिकॉर्ड्स ही दिखेंगे. राइट. सो बाद में धीरे धीरे आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे वैसे वैसे आगे के 50 रिकॉर्ड्स आएंगे. दिस इज नोन एज लेजी लोडिंग. इसको हम बोलते हैं लेजी लोडिंग. राइट. जैसे आप अमेजोन में भी ना जैसे जैसे आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे या कोई भी वेबसाइट पे तो नीचे के प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आते जाते हैं. राइट. सो दैट इज नोन एज लेजी लोडिंग. उसका भी कोडिंग होता है. ओके. कितना सेट करना है कैसे लेजी लोडिंग होना चाहिए. राइट. सो दिस इज हाउ multiple records are actually inserted into the Salesforce object by using bulkification process. So is this clear to everyone? Sonali, will you please stop the recording?